आम इंतखाबात के नतायज के बाद कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस लीडरान की अहम मीटिंग हुई और जिसके बाद लीडरान ने कुमारस्वामी हुकूमत के अपने मुद्दतकार पूरा करने का दावा किया है। कैबिनेट के बदलाव के सवाल पर सभी वज़रा ने कहा है कि पार्टी जो फैसला लेगी वो तैयार है। वाज़ेह रहे कि हालिया इंतखाबात में शानदार जीत के बाद बीजेपी लीडरान जोश में हैं। कर्नाटक में बीजेपी लीडरान वस्ती इंतखाब की बात कर रहे हैं। लीडर अपोजिशन बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि जब 28 में से 25 सीटों पर उनके हक में राय आई है तो ऐसे में इत्तेहादी हुकूमत को इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। उधर रियासती वज़रा का कहना है कि ये उनके लिए फिक्र की बात है, लेकिन वे वापसी जल्द करेंगे। तो एक बार फिर से कई अरकान एमएलए के नाराज़ होने की बात भी कही जा रही है। बीजेपी जहां सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है तो रियासती वज़रा कुमारस्वामी हुकूमत के अपनी मुद्दत पूरा करने का दावा कर रहे हैं। वहीं दीगर वज़रा ने कहा है कि बीजेपी हमेशा जमहूरियत की खिलाफ वर्जी करती रही है, जो आने वाले दिन भी जारी रहेगी। We are legislative party is meeting. After that, you will again sit and we will take. No decision has been taken. When I said that there is no decision is taken. Sir, how many positions will be made vacant, sir? Not to pursue this resignation. There is no alternative leader. He has to be continued. You just speak to my AICC General Secretary and my Chief Minister. They are the authorized people to speak on the government. Sir, do you I'm a party worker. There will be a reshuffle. There will be a reshuffle. I'm a party worker. No, whatever is there, they are. I'm just a party worker who can give some suggestions. That's all. What suggestion did you give? What suggestion did you give, sir? All 79 MLAs attend. Are you in touch with them? No, definitely we all are in touch with our MLAs. All will attend. There is nothing problem. One or two may not be in the city. That's all. Rest will attend. What was your suggestion, sir? You said you were given suggestions. That I can't disclose in the public. There are suggestions from Tumkur unit, for instance. The president of Tumkur unit has sent a letter recommending that dismissal of. That are small. No, the small issues will be there. First, we are concentrating on the government. The government is strong. Government will be stable. Government will run smoothly. कांग्रेस सदर राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर कर्नाटक में भी मुजाहरा हुआ है। राजधानी में पार्टी कारकुनान ने पार्टी की बड़ी हार तो तस्लीम की, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे ही झटकों से वे वापसी करेंगे, लेकिन ऐसे हालात में उन्हें बेहतर कमांडर की ज़रूरत है, जिसके लिए राहुल और प्रियंका से बेहतर लीडर कोई नहीं है। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात में मिली शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने CWC की मीटिंग्स में सदर ओहदे से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन अहम लीडरान के अपील के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा कुछ महीनों के लिए टाल दिया है। Certainly, entire country, entire Congress people are trying to persuade him to take back the resignation. You are hopeful that he will take back? We are hoping. Sir, your status here in Karnataka is not going well. So how will you manage this? Kind of cabinet expansion? How can we tell the strategy to the media? Then if you tell the media to the strategy, then it will become strategy. No, sir. Will there be cabinet expansion? No, nothing. No, don't worry anything. Government will go smoothly. All Congress JDS leaders are in one voice. Today we are meeting legislative members, and we are going to meet senior leaders also. We will seek the opinion unanimously, and with one voice we will fight. कर्नाटक में कई शहरों में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं। शिवमोगा के अलावा कोल्लार जिले के श्रीनिवासपुर में म्युनिसिपल इलेक्शन की तैयारी चल रही है। पार्लियामानी हार के बाद इत्तेहादी जमातें एक बार फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती हैं। मकामी तौर पर जेडीएस की मजबूती में लगी पार्टी उम्मीदवार आयशा सिद्दीकी ने कामयाबी का यकीन दिलाया है, जबकि यहां उनका मुकाबला अपने ही साथी जमात कांग्रेस उम्मीदवार से है। जी, पहली बार मैं इलेक्शन लड़ रहा। पहले हमारे शौहर थे, उन्होंने रहकर अच्छा डेवलप करे एरिया। अब हम लोग करना चाह रहे, मेरे को चांस मिले, इसलिए मेरे शौहर जैसा डेवलप करे एरिया या सराउंडिंग हमारी, इंशाल्लाह मैं भी वैसा डेवलप करना चाहती हूँ। और मेरे साथ जो भाई बहन, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो भी जितने भी मेरे को मदद कर रही हैं, अल्लाह उनको भी कामयाबी दे दे, और जो हम करना चाह रही हैं अल्लाह वो भी कामयाब कर दे। ऑलरेडी हमारे को बोल कर हैं जो बेघर हैं, हमारे को साइट चाहिए या घर चाहिए या पानी की कमी, ज़्यादातर तो इधर पानी की कमी है और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह वो पूरा कवर करेंगे हम लोग। सब मिलकर
जेडीएस को वोट दे रहे हैं। ये इस बार पूरे 10 के 10 सीट है, इंशाल्लाह पूरे जेडीएस के काउंसिल जीतेगी। इश्यूज कुछ भी नहीं, वाटर प्रॉब्लम है। 5 साल से जो कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत करे, म्यूनसिपैलिटी में बैठकर इतना तकलीफ दी, लोगों को परेशान कर दिया। हर गली गली के अंदर टैंकों में पानी डाले, बहुत परेशान हो गए पानी की तरफ से। नालों की कोई कमी नहीं, सिर्फ बोरवेल डाले, पूरे बोरवेल फेल, पूरा बोरवेलों का बिल पास करके खा गए। वार्ड नंबर 13 का कैंडिडेट प्रेसिडेंट बना, वो पूरा पैसा लूट दिया। वायएसआर कांग्रेस सदर जगन मोहन रेड्डी हलफ से पहले मजहबा मकामात के दीदार कर रहे हैं। असेंबली में पार्टी लीडर मुंतखब होने के बाद जगन मोहन रेड्डी वेंकटेश्वर टेंपल पहुंचकर दर्शन करते नजर आए। जगन मोहन कल 30 मई को कनक दुर्गा मंदिर जाएंगे, जहां पर उनके अलावा तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव, डीएमके सदर एमके स्टालिन और 3 रियासत के गवर्नर भी दर्शन कर सकते हैं, जिसे देखते हुए मंदिर इंतजामिया ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इससे पहले जगन मोहन ने पीएम मोदी समेत दीगर अहम लीडरान से मुलाकात कर हालात पर बातचीत की थी। रियासत के हालात को समझते हुए तमाम सीनियर अफसरान ने जगन मोहन से मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि रियासत में पार्लियामेंट के साथ हुए असेंबली इंतखाबात में टीडीपी का सफाया हो गया है। रियासत की 175 असेंबली सीटों में से अकेले वायएसआर कांग्रेस ने 152 पर जीत हासिल की है। टीडीपी को सिर्फ 22 सीटें ही हासिल हुई हैं। आम इंतखाबात 2019 में करारी शिकस्त के बाद आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी लीडरान के साथ मीटिंग की। नए मुंतखब एमएलए और एमपी के साथ नायडू ने मीटिंग कर हालात का जायजा लिया। अपने इक़्तिदार के आखिरी दौर में दिनों के अंदर स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाकर टीडीपी ने काफ़ी हंगामा मचाया था। दूसरी जानिब जगन मोहन रेड्डी अपनी यात्राओं के जरिए आवाम के करीब पहुंचते रहे। नतीजतन रियासत में बड़ा सियासी बदलाव सामने आया है और कई दिनों बाद आज टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी लीडरान के साथ मीटिंग कर उनमें जोश भरने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम आंजहानी एनटी रामाराव का 96वां यौम पैदाइश मनाया गया और उनके हामियों ने इसे तेलुगु देशम पार्टी की बुनियाद के तौर पर मनाया। रियासत गिर पैमाने पर उनके मुजस्समे को फूलों से सजाया गया और उनके हक में जमकर नारेबाजी की गई। वाज़ेह रहे कि अपने ज़माने के मशहूर फिल्म डायरेक्टर एनटी रामाराव कई बार रियासत के वज़ीर आला भी रह चुके हैं, जो अपने दौर में काफ़ी मकबूल थे। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए एक अच्छी खबर है। रियासत से वेटिंग में चल रहे 284 आज़मीन हज को हज पर जाने की हरी झंडी मिल गई है। हज कमेटी का मुताबिक 7 जून से पहले सभी कागजात के साथ तय रकम हज कमेटी के पास जमा कराने होंगे, ताकि नहीं पहुंचने की हालत में नए उम्मीदवारों के नाम पर गौर किया जा सके। कमेटी के मुताबिक अब तक रियासत से वेटिंग में चल रहे 1170 लोगों को बुलाया जा चुका है, जिससे बाकी लोगों की भी उम्मीदें बरकरार हैं। आज़मीन हज के लिए एक अच्छी इत्तला ये हम देने जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 284 आज़मीन को वेटिंग लिस्ट में से बुलाया जा रहा है। उनके सीट कंफर्म हो रही है। अभी तक हम लोगों ने 1170 वेटिंग लिस्ट तक के आज़मीन को इत्तला दी थी और उनके पासपोर्ट्स और उनकी जो अखराजात की रकम है वो हम लोगों ने जमा करवाई थी। अभी हमारी वेटिंग लिस्ट का जो नंबर है वो बढ़ के 1455 हो चुका है। तो इस तरह से 284 आज़मीन अब इस वक्त हमारी लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। इन लोगों से दरख्वास्त है कि ये अपने जो पासपोर्ट्स हैं वो 7 जून उनकी आखिरी तारीख़ है, 7 जून तक हमारी ऑफिस में दाखिल कराएं और फिर ये जो अखराजात हैं 2,01,000 रुपये की जो रकम है वो इन्हें जमा करानी होगी। महीना रमज़ान का हो या कोई और माँ की खिदमत का कोई वक्त नहीं होता। बदलते हुए हालात में अपने औलादों की बेरुखी से परेशान वालिदैन आश्रमों में रहने को मजबूर है, लेकिन ऐसे भी खुशनसीब शख्स हैं कि इस दुनिया में जो 75 माँ और 35 बाप का सहारा बनकर उनकी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही नेक इंसान हैं डॉक्टर कादरी, जिनका मकसद बेसहारा लोगों की खिदमत करना है। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे मीर अली बाकरी ने। पर कहीं जन्नत होती है तो वो होती है माँ के ख़त्मों के नीचे। अगर आप इस तरफ देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी औलाद शायद हो ना हो, लेकिन इनके लिए, इनकी खिदमत करने के लिए अल्लाह किसी न किसी को पैदा कर देता है। अगर जन्नत अगर दुनिया में हो तो बस यहीं
जहाँ पर माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, ये हमारी माँ ने भी कहा, हदीस भी है और आप भी सुनते आए हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इन माँओं की खिदमत करने के लिए इनका एक बेवड़ा लिया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं। बताइए, आपने इन तमाम माँओं की खिदमत कर रहे हैं, ये आपको कहाँ से इसकी जो है तौफीक मिली? ये मैं 10, 12, 13 साल स्टार्ट हो रहे हैं ये खिदमत शुरू करके, और जो है अल्लाह में हिदायत दिया, क्योंकि मैं मेरे माँ बाप को जो है अल्फाज नहीं है, मैं उतना चाहता हूँ। हर औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप को जो है इतनी खिदमत करे। मैं इससे पहले दुबई में था, मैं दुनिया ताक़िब फिर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसा कमाया हूँ। कुल मिलाकर कितनी माएँ हैं जिसे आप खिदमत करते हैं और आपको इससे मिलता क्या है? आपको क्या महसूस होता है इनके बीच में रहकर? मेरे भाई, माँ के ख़दमों की तो नीचे जन्नत है ही है, वो अल्लाह के रसूल फरमाए हैं। और दुनिया में भी जो है जो जज्बा होता है, मोहब्बत जो होती है, मैं ज़िंदगी वफ़ कर दिया हूँ, मैं और मेरी बीवी। और जो इसमें माएँ भी हैं, दादी की उम्र के भी है, दादा की उम्र के हैं, नौजवान बहनें भी हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी रहने से, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल रहने से वो मुहैया क्या रोज़े रहते हैं लोग या फिर क्या करते हैं? नहीं, तकरीबन जो है मेडिकल रहने से बेड के पैम्पर के लोग ज़्यादा पूरे हैं। चंद उसमें से है जो 12-13 जने तो रोज़ा भी रहते हैं। अब मैं सुबह को जो है इफ्तार का इंतज़ाम रखता हूँ, क्योंकि रोज़दार के साथ रोज़ा खोले तो भी अल्लाह के रसूल जो रोज़े का सवाब बोले। अभी मजबूर है, मोहताज है, बीमार है, तो सुबह को अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना उनके ज़रूरियात होते हुए रमज़ान में तो ख़ास तौर से जो है देखभाल होती है। आइए, आप डॉक्टर खादरी हैं जो इन तमाम लोगों की खिदमत करते हैं, इनसे दुआएं लेते हैं। रमज़ान में ख़ास तौर पर कोई लोग यहाँ पर आकर जो है खिदमत देना चाहते हैं तो वो हक़ किसी को और को नहीं देते, वो ख़ुद ही खिदमत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी वफ़ कर चुके। कई लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन अक्ल सलीम नहीं, खुदा की तरफ से अदा नहीं। इसलिए कुछ लोग हैं जो लोग कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ दुनिया में पाना चाहते हैं, वो है माँ की दुआएं। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद। और अब बात रमज़ान के मुबारक महीने की, जहां यकम रमज़ान से ही लोग इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। फ़िलहाल रमज़ान का तीसरा अशरा चल रहा है और शब क़द्र की तलाश में मुसलमान ताक रातों में इबादत में मसरूफ़ रहता है। रमज़ान की आखिरी 10 दिन जो बख्शीश के हैं, जिसके बारे में उलेमा का कहना है कि इन्हीं में से एक रात शब क़द्र होती है और जिस रात कुरान करीम का नज़ूल हुआ। हदीस में है कि शब क़द्र ताख रातों में है, तो इसलिए आज हमने शब क़द्र मनाई है। शब क़द्र की अज़मत के लिए सिर्फ़ यहाँ पर इतना कहूँगा, जैसे इस महीने की निस्बत खुदावंद आलम से है, शहरुल्लाहिल मोहतरम कहा गया, तो शब क़द्र की अज़मत इस तरह समझे कि खुदावंद आलम अपने कलाम पुरज़ हिकमत में सूरह क़द्र को नाजिल किया है, कहते हुए इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। यानी शब क़द्र के दिन, यानी इस शब को खुदावंद आलम ने कुरान नाजिल किया है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।